Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पहिला स्कंद अध्याय 8 कुंती देवी की प्रार्थना। कुंती देवी की प्रार्थना और परीक्षित महाराज जी का रक्षण। तो उसमें श्लोका संख्या 38 एंड 39। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार है। केवयं नाम रूपाभ्याम केवं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवा यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो अदर्शनं यर्हि भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानाम् इव ईर्षितुम्। ऋषिकानामिवेशुतुः। So translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. As the name and fame of particular body is finished with the disappearance of the living spirit, similarly, if you do not look upon us, all our fame and activities along with the Pandavas and Yadus will end at once. Tatparya: Kunti Devi is quite aware that the existence of the Pandavas is due to Sri Krishna only. The Pandavas are undoubtedly well established in the name and fame and are guided by the great king Yudhishthira, who is mortality personified. And the Yadus are undoubtedly great allies. But without the guidance of Lord Krishna, all of them are non-entities. As much as the sense of the body are useless without the guidance of consciousness. No one should be proud of his prestige, power, and fame without being guided by the favor of Supreme Lord. The living beings are always dependent, and the ultimate dependable object is the Lord Himself. We may therefore invent by our advancement of material knowledge all sort of counteracting material resources, but without being guided by the Lord, all such inventions end in fiascos. However strong and stout the reactionary elements may be. हरे कृष्णा। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। श्लोका संख्या 39। न एवं शोभयेत् न इयं शोभियष्यते नेयं शोभिष्यते तत्र तत्र यथा दानीनं गदाधर यतेदानीं गदाधर त्वत्पदो अंकिता त्वत्पदेरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। अति स्वलक्षणा विलक्षिते। O Gadadhar, Krishna, our kingdom is now being marked by the impression of your lotus feet. Therefore,
it appear beautiful, but when you leave, it will be no longer be so. There are certain particular marks on the feet of Lord which distinguish the Lord from others. The mark of flag, thunderbolt, and the instrument to drive an elephant, umbrella, lotus, disc, etc. are on the bottom of Lord's feet. These marks are impressed upon the soft dust of land where the Lord traversed. The land of Hastinapur was thus marked while Lord Sri Krishna was there with the Pandavas. And the kingdom of Pandavas thus flourished by such auspicious signs. Kunti Devi pointed out this distinguished feature and was afraid of ill luck in the absence of Lord. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vinda Govinda Swami. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी देवी शेष शून्यवादी पाशाद देशकार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे कि कुंती महारानी ये श्लोका में क्या बता रही है। तो हाईलाइटेड पॉइंट्स किए हैं। पहले श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे कि कुंती महारानी क्या कह रही है कि पांडवों का जो अस्तित्व है उसका एकमात्र जो अस्तित्व का कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर वही उसमें बताते हैं कि श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। और उसमें वो एक बहुत अच्छा पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जीव सदैव आश्रित है और अंतिम आश्रित भगवान स्वयं है। और फिर नेक्स्ट श्लोका में इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स ये है कि भगवान के चरण कमल के बारे में बताया है कि भगवान के चरण कमल कैसे, उसमें ध्वजा है, व्रज है, अंकुश है, छत्र, कमल, चक्र ये चिन्ह बने रहते हैं। और भगवान जिधर जिधर ब्रजभूमि में चलते हैं और उधर उधर वो चिन्ह अंकित होते हैं। तो ये कुंती महारानी बोल रही है। तो अभी ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है। तो अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे जितना मुझे समझ में आया। जैसे ब्रज प्रिया माता जी हमेशा बोलती है तो मैं प्रयास करूंगा कुछ बोलने के लिए। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं कि भक्त का विनीत भाव इसमें पता चलता है। कुंती महारानी का विनीत भाव कैसे है, क्योंकि कल हम लोगों ने सुना था कि माता कुंती बोल रही थी कि सब हमारे शत्रु बने हैं, तो आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं। कल बहुत अच्छे से सर्वोदय हृदय प्रभु ने हमें समझाया। उसके पहले प्रेम सखा प्रभु कुंजेश्वरी माता जी ने। तो अभी हम लोग जो कुंती स्तुति हम लोग सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग को कुंती महारानी का एकदम जो भाव है वो समझ में आ रहा है कि कुंती महारानी क्या भाव से बोल रही है, विनीत भाव उनका। तो वो बता रही कि ये जो श्लोका है, श्लोका नंबर 38, 39, 37, 38, 39 एंड 40, ये उनकी दयनीय अवस्था को बता रहा है। ऐसा मैंने अभी लेक्चर में सुना तो वो बोल रहे थे कि ये दयनीय अवस्था है। और ये दयनीय अवस्था मतलब ये खाली मटेरियल लोगों को दिखाने के लिए, वो शुद्ध भक्त है लेकिन उनकी दयनीय अवस्था इन द सेंस वो प्रतीत कर रही है। और वो 37, 38, 39, 40 श्लोका में वो प्रतीत कर रही है। और भगवान क्या बोलते हैं कि कुंती महारानी को कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। पांडव है, आपके यदुकुल से संबंध है, आपके भाई वसुदेव भी है, तो आप मेरे पे निर्भर क्यों है। तो हम लोग को पता है कि शुद्ध भक्त हमेशा भगवान पे निर्भर रहता है। तो कुंती माता जी बोल रही है कि हमारा सब कुछ जो भी है वो सब आपकी वजह से है। तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि इस श्लोक में ये वर्णन आता है कि शरीर और चेतना के बारे में। तो
शरीर में चेतना आत्मा का लक्षण है। म्हणजे शरीर जो भी चलता है, जो भी कार्य करता है, उसका मतलब है कि वो आत्मा का लक्षण है। आत्मा ही शरीर को धारण करने वाला है। आत्मा निकलने के बाद इंद्रिया, शरीर, इसकी कोई सत्ता नहीं होती। जैसे एक आदमी मर गया तो उसकी आंखें, हाथ पांव कुछ काम के नहीं है, वो सब क्या होती है? निष्क्रिय होती है। आत्मा शरीर को चलायमान करती है। तो कुंती महारानी बोल रही है कि इसी प्रकार से हम आप पे निर्भर है, हम आप पे डिपेंड है। जैसे कि एक शरीर में आत्मा, एक शरीर आत्मा के ऊपर आश्रित रहता है। मतलब यदुवंश पांडव केवल नाम मात्र रहेंगे अगर आप हमें छोड़कर जाएंगे, हमारा सामर्थ्य निकल जाएगा। कुंती महारानी कितने अच्छे से बात बोल रही है भगवान को कि हमारा पूरा सामर्थ्य, हमारा पूरा जीवन निष्क्रिय हो जाएगा भगवान आप जाएंगे तो भगवान की कृपा हम लोग अगर देखेंगे कि हमें पता है अर्जुन जी बहुत बड़े धनुर्धर थे। युधिष्ठिर महाराज कौन थे? धर्मराज थे। भीम गदाधर थे। इनकी शौर्य गाथा हमें पता है, लेकिन ये सब कुछ काम का नहीं है, ऐसे कुंती महारानी कह रही है। हम सब आप पे निर्भर है। तो हम लोग अगर कुरुक्षेत्र युद्ध में देखेंगे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को कितनी बार बचाया, क्योंकि उनके सामने कौन थे? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा। तो अर्जुन जी उनके सामने क्या थे? कुछ नहीं थे। तो क्या था? अगर भगवान नहीं रहते तो हम लोग को पता है क्या होता था। और अगर हम लोग आगे देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज जी की जान भी भगवान ने बचाई। जब युधिष्ठिर महाराज जी ने अर्जुन जी को बताया कि आप गांडीव नीचे रखिए, तब अर्जुन जी युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए जाते हैं और तभी भगवान उनको बचाते हैं। तो हम लोग को ये भी इंसिडेंस पता है। मैंने इसके गोपी मनोप्रभु जी से अभी थोड़े टाइम पहले चर्चा की। तो क्योंकि ये जो इंसिडेंस है, इसमें भगवान जी ने युधिष्ठिर महाराज की जान बचाई है अर्जुन जी। तो ये भी जो कुछ हो रहा है तो ये केवल और केवल भगवान की दया से और भगवान की कृपा दृष्टि से हो रहा है। और हम लोग ने ये श्लोका में देखा कि जीव सदैव आश्रित और वो अंततः आश्रित था, उनका आश्रित था केवल और केवल और केवल श्री श्री राधा गोपीनाथ जी है। तो अभी आगे चर्चा करेंगे कि अगले वाले श्लोक में 39 में कि भगवान हस्तिनापुर में भी उनके चरण चिन्ह जो थे वो अंकित हो रहे थे उस धूलि पे। तो इसका मतलब हो गया है कि भगवान हस्तिनापुर में भी पादुका नहीं पहनते थे, इसलिए भगवान के चरण कमल की छाप अंकित हुई है, ऐसा ये श्लोक से प्रतीत हो रहा है। भगवान के चरण कमल विशेष चिन्ह अंकित है, जो कि हम लोगों ने थोड़ी टाइम पहले चर्चा की। और अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये श्लोक में कि माता कुंती का जो विनम्र भाव है, तो उनके पास अभी तो राज्य है, सब कुछ है, उनके पास प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन फिर भी भगवान की गुणगान कर रही है और भगवान को क्या बोल रही है कि आप प्लीज हमें मत छोड़ के जाइए, हमें मत छोड़िए आप। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि भौतिक व्यक्ति जो रहता है उसके पास अगर धन दौलत सब कुछ आने के बाद वो भगवान को भूल जाता है। इधर शुद्ध भक्त है, सब कुछ होने के बाद भी वो बोलता है कि भगवान हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आप नहीं है तो दैट इज अ रियल भाव ऑफ कुंती महारानी। तो वो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी ने। वो बोलते हैं कि कुंती महारानी जो है वो खाली बोलने के लिए नहीं बोल रही है, वो जो अंतर मन है उससे बोल रही है। तो बोलते कि अगर हम लोग को भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं तो अंतर मन से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं बात करना चाहिए भगवान के साथ। तो जो भी अपना अंतर हृदय है उससे बात करना चाहिए भगवान को, और भगवान सुनते हैं। राधा गोपीनाथ जी उधर है, वो सुनते हैं हमारी बात। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये लोटस फीट के बारे में, तो लोटस फीट के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो लोटस प्रेयर्स एट द लोटस फीट करके एक बुक है। तो वो इतनी बड़ी बुक है, तो उसके ऊपर एक्चुअली हम लोग चर्चा करने जाएंगे तो 2 साल भी कम पड़ेंगे। वो बहुत अच्छी बुक है।
तो हम लोग को पता है कि लोटस फीट क्या है भगवान के। तो लोटस फीट के जो चरण रज है वो पाने के लिए शिव जी भी वृंदावन आए। क्या बन के आए? नंदीश्वर। कि भगवान के चरण कमल, राधा रानी और जो गोप सखा है उनके चरण कमल हमारे पे पड़ेंगे। और ब्रह्मा जी भी उधर 4 जो गढ़ है उधर वृंदावन के आजू बाजू में, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, बानगढ़, तो ब्रह्मा जी भी उधर आए क्योंकि उनको क्या चाहिए था? चरण, भगवान के चरण रज चाहिए थी। कि उनको लग रहा था कि भगवान हमारे ऊपर से चलते हो जाएंगे तो उनके चरण रज हमें मिलेगी, गोप सखा की। तो हम लोग देख सकते कि शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मीन्स वो चरण रज धारण करते हैं। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल जो है विशेष चिन्ह है, और वो जब भी धरती पे पड़ते हैं तो धरती और भी शोभायमान हो रही है। और हमें पता है कि लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण कमल में 24 घंटा सेवा में रहती है। और इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अक्रूर जी जब पहली बार ब्रज में आए थे तो उन्होंने भगवान को जब देखा और भगवान के चरण कमल को देखा, तो जैसे भगवान के चरण कमल को देखा तभी वो देखते ही देखते उधर लोटपोट हो गए भगवान के चरण कमल देखे। तो इसकी चर्चा राधा गोविंद स्वामी महाराज अक्रूर मनोरथ में करते हैं कि जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण कमल देखे अक्रूर जी ने, और वो क्या किया? वो चरण कमल वो लोटपोट हो गए वृंदावन की ब्रज में। तो इधर कुंती महारानी भगवान को क्या कह रही है इस श्लोका में कि गदाधर कह के संबोध रही है, मतलब गदाधर विष्णु। तो कुंती महारानी कह रहे कि भगवान को कि आप हमें जो राज्य दिला है तो इस राज्य का हम क्या करेंगे जब आप इधर नहीं है। तो कुंती महारानी का मुख्य प्रयोजन है कि भगवान कृष्ण को कैसे रोक सके। और इसके ऊपर शिला प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तभी शिला प्रभुपाद उनके व्याख्यान में बोल रहे हैं कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु क्या समझाते हैं? शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे हमें, कि भगवान के सिवा सब कुछ शून्य है। हमारा आश्रय केवल और केवल श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरण कमल है। तो हम लोगों ने कल भी देखा कि सनात कौन है? जो भगवान का आश्रय लेता है, अदरवाइज वो क्या है? वो अनाथ है। तो शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर में शिला प्रभुपाद तो श्लोका का वर्णन करते हैं कि कुंती महारानी जो है उनको सब कुछ पता था भगवान के बारे में। तो शिला प्रभुपाद जी कोट कर रहे थे श्लोका चैप्टर 15 से 19 और 20 कि शुद्ध भक्त जो होता है उसको पता रहता है कि कौन है भगवान कृष्ण। तो श्लोका नंबर 19 चैप्टर 15 में से पुरुषोत्तम योग, यमाम एवं असम्मूढ़ो जानति पुरुष उत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। मीन्स जो भगवान को पूरी तरह से जानता है वो भगवान की इसमें पूरी तरह भगवान की सेवा में रत रहता है। और शिला प्रभुपाद आगे उसमें बताते आगे कि श्लोका संख्या 20 भी उसमें बताते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग एतत बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत च भारत। कि ये अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूरे होंगे। तो शिला प्रभुपाद ये दोनों का कोट करते हैं उसमें कि ये शुद्ध भक्त है जो कुंती महारानी, उनको पता है कि ये गुह्य ज्ञान है। और शिला प्रभुपाद उनके श्लोका में ये भी कोट करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इसमें जो भक्त है उनको पता है कि भगवान कौन है करके, तो ये श्लोका से हमें प्रतीत होता है। तो एक राधा गोविंद स्वामी महाराज को प्रश्न पूछा गया कि
कि कुंती महारानी शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो उत्तर में वो बता रहे हैं कि महाराज ने बताया कि कुंती महारानी शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त हमेशा हमेशा और हमेशा भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। वो दूसरे किसी कारण, वो अगर मटेरियल लोग देखेंगे वो आज किसके ऊपर आश्रित है, कल दूसरे के ऊपर आश्रित है, लेकिन शुद्ध भक्त है वो हमेशा क्या करता है, भगवान पे आश्रित होता है। और प्रभु तो वो लेक्चर में महाराज और एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान आप मुझे माया से बचाओ। और प्रभुपाद बोलते थे कि मेरे जो शिष्य है वो माया से डरते ही नहीं। तो शिला प्रभुपाद भगवान को प्रे कर रहे कि मेरे भक्तों को भी बचाओ और मुझे भी बचाओ। तो ऐसे महाराज बोल रहे थे। और महाराज आगे बोल रहे कि हम लोग को ये भी पता है कि जब भी भगवान कृष्ण रहते तो उधर क्या है, वो श्लोका कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मर्ति मम। तो इसका मतलब है कि जिधर भगवान रहेंगे उधर सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पर कुंती मारी भगवान का वर्णन ऐसा कर रही है। और अगर हम लोग आगे देखेंगे कि भगवान के चरण कमल के बारे में भी वर्णन बताया है, तो हम लोग आगे देखेंगे इसका मतलब है कि अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण आज भी हमारे सामने उपस्थित है, तो अगर हम लोग सोचेंगे कि भगवान कृष्ण हमारे सामने कैसे है, तो आज भी वो विद्यमान है। कैसे? भगवद गीता यथा रूप में। तो भगवान और भगवान की वाणी में कुछ भी अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कुछ भी अंतर नहीं है। तो अब हमें देखना है कि क्या हमें उस वाणी को अर्जुन जी की तरह गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में पालन करें। हमारे जीवन में हम भगवान की शरणागति पूर्ण ले लिया है हम लोगों ने, ये हमें अपनी देखना पड़ेगा। और हमें भगवान के वचनों को गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए और वो अपनाना चाहिए। तो एक छोटा सा मेरे मन में भी वो सवाल था कि ये श्लोका में जैसे बताया कि 38 श्लोका में कि अगर वो शरीर से अगर आत्मा निकल जाएगी तो सब नाम और कर्तृत्व सब खत्म होते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया महाराज जी को, तो महाराज उसका उत्तर देते हैं कि आत्मा के चले जाने पर नाम तथा यश गायब कैसे होता है। और महाराज बताते हैं कि भौतिकवादी लोग हैं यही लालसा में रहते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरा यश गुण हो जाए। तो महाराज उत्तर में बताते हैं कि आत्मा शरीर को जब भी छोड़ देता है तब शरीर निष्क्रिय पड़ा रहता है, और अभी आत्मा शरीर को त्याग देती है तब वो आत्मा का उस शरीर से कुछ भी संबंध नहीं होता। अगर व्यक्ति नाम यश गुण है तो उसका कुछ भी काम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इस बार अगर जो व्यक्ति है नया शरीर उसने धारण करके आया और वो पर्टिकुलर आत्मा ने शरीर को धारण किया है और उसका नाम हुआ, उसका यश होगा, लेकिन जब भी वो क्या हुआ, वो शरीर का नाम हुआ और उसका यश हुआ, और अब आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया और उस आत्मा दूसरे शरीर में गई, फिर दोबारा जन्म होके आ गई। तो जो पिछले वाला शरीर में नाम यश, उसका दूर दूर तक उसे कुछ लेन देन नहीं है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो नाम यश का कुछ लेन देन नहीं है, परंतु हकीकत में देखा जाएगा तो बाकी और चीजों से नाम यश होता ही नहीं है। केवल और केवल अगर हम भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी से जुड़ जाएंगे तो रियल नाम हो सकता है हमारा। मतलब अर्जुन जी भी, हम लोग देख सकते कि अर्जुन जी भी भगवान से जुड़े थे, तो इसके लिए उनका नाम भगवद गीता में। तो ये है असली नाम। लेकिन शुद्ध भक्त तो जो है वो कभी इसकी लालसा नहीं रखता। शुद्ध भक्त कैसे रहता है? वो हम्बल रहता है, वो दास का भाव रहता है, उसका वो एटीट्यूड रहता है, उसको कभी नाम और फेम कभी नहीं चाहिए। तो हम लोग को देखते हैं कि जो मटेरियल लोग हैं वो खुद को वीआईपी समझते हैं, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन।
लेकिन भक्त है वो खुद को भी वीआईपी समझता है। उसका मतलब है भक्त जो समझता है वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। तो अगर भक्त को नाम और फेम या वेल्थ भी मिला तो वो क्या बोलता है कि एनीथिंग वी कैन डू गुड, और जो भी मेरे पास बहुत अच्छा है तो वो भी सब कुछ है वो भगवान की मर्सी है, हरि की मर्सी है और वैष्णव की कृपा है। तो इसका उदाहरण प्रभु जी दे रहे थे, हिज ग्रेस विद्वान गवान प्रभु, वो बताते हैं कि एनीथिंग वी डू गुड, और कुछ भी हम लोग को जो अच्छा करते हैं वो सब हम लोग क्या करते हैं, हरि गुरु और वैष्णव को समर्पित करते हैं। तो शुद्ध भक्तों का यही भाव होना चाहिए कि जो भी कुछ है दैट इज ओनली बाय द मर्सी ऑफ हरि गुरु एंड वैष्णव। हरे कृष्ण। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद।